Good morning everyone. Welcome to the lecture of Design of Steel Structure. In today's lecture, we are going to start a new chapter, Foot Over Bridge. So basically, the truss girders are used as a main load carrying members in a truss girder bridges. So the truss girder bridges are also known as a open web girder bridges or a lattice girder bridges, right? So the topmost member form the top chord while the lowermost member form the lower chord. So when a span is so large that it cannot economically breach by a plate girder, so that's why we are using these truss girders, right? So truss girders are used for a span greater than a 30 meters. So in a contrast to the plate girder bridges where there is a continuous web, the truss girder bridges have two open web in a form of a diagonals and a verticals. The chord members form a perimeter of a truss figure while the end member form a part of a web, right? That's why we have said this: the uppermost member form the top chord and lowermost member form the bottom chord. So basically, top chord and bottom chord and a web members are absolutely necessary for the stability of a girder, and they are known as a main members, right? The point of intersection of a web members with the chord members are called panel points. उसको बोलेंगे panel points. Basically, the truss girder bridges may be a three types of, like first one is a true type, second one is a deck type, and third one is a half true bridge type, right? So we will see one by one. So what is a deck type? Deck and true type truss bridges. So a truss bridge in a general consists of two longitudinal trusses cross connected by a cross girders. So the live load is received by a cross girder and from the cross girders load, and that transmitted to the trussed joint, right? What is deck type of a truss bridge? So in the deck type of a truss bridges, the floor system rests on a top chord, right? top chord के ऊपर ये फ्लोर सिस्टम रेस्ट करती है. So cross girders are provided at the top of a truss, and so that load is received at the top chord joint of a truss. So the floor system is connected to a top chord in a deck type truss bridges. What is a true type truss bridges? So in a true type truss bridges, the floor system rests on a bottom chord. जो bottom chord होती है उसके ऊपर rest करती है. So cross girders are provided at the bottom of a trusses, so that the load is received at the bottom chord joint of a trusses, right? Bottom chord का जो joint होता है उसके ऊपर इसके अंदर load आता है. So यहाँ पे दो टाइप के trusses हम लोगों ने देख लिए. Now we will see component of a truss girders. So various components are there. Main vertical trusses are there. Floor system, bottom lateral bracing, top lateral bracing are there. Now we will see types of truss girders. So various types of girders can be grouped under a following heads. So first one is a parallel chord truss girders, inclined or a curve, or a camel back truss girders, subdivided truss girders. So these three types of girders are there, and various type of trusses are there. So Pratt truss, Warren truss, Howe truss, Whipple truss, K truss, Z truss, parabolic truss, and Virendrill truss, right? So we will see each of one in a figure. Yes, you can see first one, that is a standard Pratt truss. So as shown in a figure, most of the trusses are either of a Pratt type or a Warren type. In a Pratt truss with the parallel chord, all the diagonal except the end post are in a parallel direction. You can see in these figures, and are in a direct tension. In a few panels in the middle where there is a possibility of a reversal of a stresses,
either the diagonal are designed for a comparison or else counter bracing. So you can see in a figure that is a dotted lines. You can see in this figure dotted lines. In a contrast to this, the diagonal in a Vaheron type trusses alternate in a direction, and hence these are a टेंशन एंड अ कंप्रेशन इन अल्टरनेट पैनल्स. ठीक है, इसके अंदर अल्टरनेट पैनल के अंदर टेंशन भी आ सकता है एंड कंप्रेशन भी आ सकता है. सो इन अ हो ट्रसेस द डायगोनल्स आर इन अ कंप्रेशन वाइल द वर्टिकल्स आर इन अ टेंशन्स. जो हो टाइप की ट्रसेस है उसके अंदर जो डायगोनल पार्ट है उसके अंदर क्या है, कंप्रेशन है, और जो पार्ट वर्टिकल है वो पार्ट के अंदर क्या जनरेट होता है, टेंशन क्रिएट होता है. सो बेसिकली फुट ओवर ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर अ पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ओनली, राइट. Now we will see a application of these bridges. So foot over bridges are used for a railway station to change a platform. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्लेटफॉर्म पे दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर हमें जाना है तो स्टील का एक ब्रिज बनाया होता है. सो वो ब्रिज को हम लोग बोलेंगे फुट ओवर ब्रिज, राइट. सो एट रेलवे स्टेशन टू चेंज प्लेटफॉर्म वी कैन यूज. सेकेंड, स्काई वॉक इन मेट्रो सिटीज़. आप लोगों ने मेट्रो सिटीज़ के अंदर देखा होगा स्काई वॉक एक होता है. ठीक है, सो वहाँ पे भी सेम है कि एक रोड से दूसरे रोड पे अगर जाना है तो हम लोग वो ब्रिज यूज़ करते हैं. तो वो ब्रिज बेसिकली स्टील का बनाया हुआ होता है. ठीक है, उसको बोलते हैं स्काई वॉक इन अ मेट्रो सिटीज़. थर्ड एप्लीकेशन, ओवर अ बिजी स्ट्रीट टू अ क्रॉस रोड्स. जहाँ पे बिजी स्ट्रीट्स होती है वहाँ पे हमें रोड क्रॉस करने के लिए हम लोग ऊपर से एक बनाते हैं. तो वो भी आप लोगों ने हाईवेज पे देखा होगा कि कैसे रोड क्रॉस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रोड्स. द फोर्थ एप्लीकेशन इज कनेक्टिंग टू ब्लैड्स टावर्स एट अ हायर लेवल. लाइक अगर दो टावर्स आजू बाजू में है हायर लेवल पे, उसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो बाय फुट ओवर ब्रिज हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है टू क्रॉस अ स्ट्रीम ऑफ अ मॉडरेट विड्थ, राइट. मॉडरेट विड्थ की स्ट्रीम को अगर क्रॉस करना है तो हम उसके ऊपर फुट ओवर ब्रिज बना सकते हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो ये फुट ओवर ब्रिज वाला चैप्टर है, उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी है. स्टील फुट ओवर ब्रिजेस कैन बी आइदर ऑफ अ प्लेट गर्डर और अ truss type. So in the case of a truss type foot over bridge, there are two types, trough type and deck type, and a commonly used foot over bridge belong to a truss trough type bridge, right. And if a height of a bridge above the floor level is a 3 meter or a more, or then it can be possible to provide a top bracing in a horizontal plane or a lateral restraint to the compression cord of a truss, and for a low height and rackers are used, right. अगर हमें लो हाइट के लिए कंस्ट्रक्ट करना है उसको तो हम लोग रैकर यूज़ करते हैं. To a popular geometry of a foot over bridge is a typical Pratt or an end truss, and the orientation of a diagonal is such that the more member resists the shear by a tension in a member, and for the same value of a design force, the tension member consumes a lesser material than a compression members, right. So ये जो थियोरी पार्ट था वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है. अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स फॉर अ डिज़ाइन. सो अगर हमें फुट ओवर ब्रिज को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कौन से स्टेप्स आएंगे, और वो स्टेप्स है उसके अंदर जो इक्वेशन है वो IS 800 2000 में कौन से पेज नंबर पे है. तो पेज नंबर 18, 32, 33, 3, 42, 48, 53, 59, 73, 74 एंड 139. सो इतने पेज नंबर्स हैं जिसके ऊपर सारे इक्वेशंस दिए हैं. जो स्टेप्स है वो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. तो स्टेप नंबर 1 है जियोमेट्री ऑफ अ लैटिस गर्डर. सो व्हाट इज जियोमेट्री. सो जियोमेट्री के अंदर आ जाएगा डेप्थ ऑफ अ गर्डर, लेंथ ऑफ अ गर्डर क्या है, लेंथ ऑफ वर्टिकल्स क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या है. सो ये सारी चीज़ें जो फाइंड आउट करनी होती है हमें वो जियोमेट्री ऑफ अ लैटिस गर्डर में आएगी. तो सबसे पहले हम लोग जियोमेट्री ऑफ अ लैटिस गर्डर फाइंड आउट करेंगे.
उसके बाद हम लोग देखेंगे डिज़ाइन ऑफ अ क्रॉस बीम। तो क्रॉस बीम की डिज़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमें कोई भी बीम की डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है। कोई भी बीम की अगर डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले लोड कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। डेड लोड कैलकुलेट करना पड़ता है कि ड्यू टू स्लैब कितना डेड लोड आएगा, फ्लोर फिनिश क्या आएगा, उसके ऊपर लाइव लोड क्या आएगा। तो हम लोग सबसे पहले टोटल लोड कैलकुलेट करते हैं। उसके ऊपर लोड कैलकुलेट हो जाने के बाद हम लोग उसके मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट क्या रहेगी वहाँ पे एंड मैक्सिमम शियर फोर्स क्या रहेगा, वो फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस होता है जिसका इक्वेशन है ZP। तो हम लोग सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं, राइट। और वो फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसके ऊपर से कोई एक ट्रायल करेंगे कोई एक बीम का, राइट। वो ट्रायल के लिए हम लोग स्टील टेबल में से डेटा ले लेंगे, जो जो नेसेसरी डेटा है। वो डेटा लेने के बाद हम लोग फ्लैंज एंड वेब की कंडीशंस देखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग सेक्शन क्लासिफाइड करेंगे। क्रॉस बीम की डिज़ाइन यहाँ पे होती है। डिज़ाइन होने के बाद हम लोग चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी करते हैं। चेक फॉर मोमेंट कैपेसिटी का इक्वेशन आपको पेज नंबर 53 क्लोज नंबर 8.2.1.2 पे दिया है। वो इक्वेशन है डिज़ाइन बाइंडिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू MD इज इक्वल टू बीटा B ZP इंटू FY अपन गैमा M0। ये इक्वेशन के ऊपर से हम लोग मोमेंट मतलब MD फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो मोमेंट फाइंड आउट की थी उससे ये ज़्यादा आती है कि कम आती है। अगर ये ज़्यादा आती है दैट मीन्स आवर मोमेंट कैपेसिटी इज़ ओके। अगर कम आती है तो हमें जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आएगा चेक फॉर शेयर कैपेसिटी। स्टेप नंबर 4 है चेक फॉर शेयर कैपेसिटी। इन दिस वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन VD, दैट इज दिस डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, एंड द इक्वेशन इज गिवन ऑन a पेज नंबर 59 क्लोज नंबर 8.4, right. In this equation is a VD is equal to AB into FYW upon under root 3 into gamma M0. By this equation we can find out shear capacity, and after finding this shear capacity we have to check with the maximum factor shear capacity that we have find earlier. The step number 5 is the loads of a N type or a W type girder, right. डिज़ाइन N टाइप मतलब हमें जो टाइप के गर्डर की डिज़ाइन करनी है। अगर आपको एग्जांपल में दिया है डिज़ाइन N टाइप गर्डर, देन वी हैव टू कैलकुलेट लोड ऑफ N टाइप, एंड इफ़ वी हैव टू डिज़ाइन W टाइप देन वी हैव टू कैलकुलेट लोड्स ऑफ W टाइप गर्डर। सबसे पहले हम लोग लोड्स कैलकुलेट कर देंगे L टाइप एंड W टाइप जो विच एवर इज़ गिवन उसका। उसके बाद करेंगे एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। एनालिसिस ऑफ फोर्सेस के लिए हम लोग जैसे वो ILD ड्रॉ करते थे, आप लोगों ने आगे वाले सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा इन्फ्लुएंस लाइंस, ठीक है। वैसे हमें इन्फ्लुएंस लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करनी है कंप्रेशन मेंबर के लिए। उसके ऊपर से हमें डायरेक्टली HT मतलब कि हाइट मिल जाएगी, ठीक है। वो मिल जाने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस इन अ टॉप कोड मेंबर, ठीक है। तो फोर्सेस हम लोग कैलकुलेट करेंगे अलग अलग टॉप कोड मेंबर्स के लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ अ टॉप कोड मेंबर। डिज़ाइन ऑफ अ टॉप कोड मेंबर के लिए हम लोग अगेन इक्वेशन यूज़ करेंगे। जो इक्वेशन आपको दिया है IS 800 पेज नंबर 32 के अंदर, वो इक्वेशन है AG रिक्वायर्ड इज इक्वल टू T अपॉन FY इंटू गैमा M0। ये इक्वेशन के ऊपर से हमें एरिया मिल जाएगा और वो एरिया जो हमें मिलेगा वो एरिया के हिसाब से हमें फ्रॉम द स्टील टेबल कोई एक सेक्शन डिज़ाइन ट्रायल करना है, ठीक है। IS सेक्शन ट्रायल करना है। वो IS सेक्शन सिलेक्ट जैसे हो जाएगा वैसे ही अगेन हमें स्ट्रेंथ गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ अ ग्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ गवर्न बाय रैप्चर नेट सेक्शन एंड स्ट्रेंथ गवर्न बाय ब्लॉक शियर। ये 3 स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, उसमें से जो हाईएस्ट होगी वो हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। ये हो गया डिज़ाइन ऑफ अ टॉप कॉर्ड मेंबर। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप है फोर्सेस इन अ बॉटम कॉर्ड मेंबर। अगेन जैसे हम लोगों ने टॉप कॉर्ड के लिए फोर्सेस कैलकुलेट किए थे इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉ करके, वैसे ही सेम हम लोग बॉटम कॉर्ड के लिए इन फोर्सेस कैलकुलेट कर लेंगे और उसके लिए अगेन बॉटम कॉर्ड मेंबर के लिए डिज़ाइन करेंगे। सो बॉटम कॉर्ड मेंबर के लिए डिज़ाइन करने के लिए भी सेम इक्वेशन आपको दिया है, वो पेज नंबर 53 IS 800 के अंदर वो यूज़ करके हम लोग डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फोर्सेस इन अ वर्टिकल मेंबर कैलकुलेट करेंगे एंड स्टेप 12 है डिज़ाइन ऑफ अ वर्टिकल मेंबर्स। ठीक है, फोर्सेस को कैलकुलेट हो जाएंगे, उसके बाद डिज़ाइन करेंगे वर्टिकल मेंबर्स के लिए। उसके बाद अगेन अगर हमारा डायगनल पोर्शन भी आता है ट्रस डिज़ाइन के अंदर, तो हम लोग डायगनल मेंबर के भी फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे और डिज़ाइन करेंगे डायगनल मेंबर की, और उसके बाद लास्ट में हम लोग डिज़ाइन ऑफ जॉइन करेंगे। ठीक है, सो ये पूरी प्रोसीजर थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कि हम लोग एग्जैक्टली एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर कितने स्टेप्स आएंगे। सो एग्ज़ाम में अगर आपको कोई एग्जाम्पल पूछा है तो उसके अंदर आपको पूछेंगे कि आपको सिर्फ डायगनल मेंबर्स को ही डिज़ाइन करना है, या फिर आपको टॉप कॉर्ड मेंबर डिज़ाइन करना है, या फिर बॉटम कॉर्ड मेंबर डिज़ाइन करना है। बट बेसिकली जो स्टार्टिंग के स्टेप्स है, जो जियोमेट्री ऑफ अ लेटिस गर्डर, डिज़ाइन ऑफ अ क्रॉस बीम, चेक फॉर मोमेंट, चेक फॉर शियर कैपेसिटी, सो इतने जो कॉमन स्टेप्स है वो तो आपको हर एक एग्जाम्पल में कैलकुलेट करने हैं। बट उसके बाद का जो है वो आपको सिर्फ बताएंगे कि आपको इतना डेटा लेना है और आपको ये टाइप का ट्रस डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के साथ ये सारे स्टेप्स कैलकुलेट करेंगे। तब तक अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कॉल करके या गूगल मीटिंग में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।